Okay, so welcome you all again in the next session in the subject public relation and corporate communication. And we have today the topic phases of public relation to be discussed. Yes, now I am audible to you all. Now, Yes, sir. okay, the content is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's begin with. So the phases of public relation. Yes, usually there are two type of public communication as we have discussed earlier. That either it is a formal communication or informal communication. If it is a formal communication, always we need to consider the organizational communication system, where any big organization or the community usually spread out their messages to the variety of public. So everything is carried out formally, following a standard code of conduct, the ethical guideline, which is formed by the business enterprise. But another part of communication is the informal communication. Informal communications are those communications material which are shareable to anyone or to a general public which do not follow any standard code of conduct, right? Means there is no standard layout of communication that how the communication should be disseminated to the people, when it should be disseminated, when it should be spread out, what are the purpose of presenting in front of public or any target audience. So we do not think about all those concept while spreading the messages to the public when it is an informal communication. See, the informal communication is something which could be spread out anytime by anyone to any group or any community or any public. Take a simple example. If suppose in your classroom you want to spread out some messages to your target audience. Your target audience could be like your class friends, classmates. And for example, the material of communication is like you want to celebrate your birthday, right? Amongst your all friends. So you're going to give a party in a restaurant or hotel or anywhere. So it is not necessary to follow a standard code of conduct. That if these students are or these classmates are if friends of mine, so these are the responsibility that should be followed before spreading the message. Not necessary. Okay, let's talk in Hindi because it is much comfortable. तो अगर सेम मैसेजेस टू बी सर्कुलेटेड अमंग्स योर क्लासमेट तो हम वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं सिंपली दे आर और क्लासमेट्स फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम सिंपली क्लासरूम में या कहीं भी किसी जगह पे इकट्ठा हम उनको करके अपने मैसेजेस को सर्कुलेट कर देते हैं आसानी से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पे कोई प्री डिसाइडेड शेड्यूल नहीं हाँ शेड्यूल होगा मे बी जहाँ पे आप पार्टी देने जा रहे हैं दैट इज प्री डिसाइडेड शेड्यूल लेकिन कम्युनिकेशन जब आप स्प्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये नहीं सोचा है कि मुझे कितने देर में करना है कब करना है कैसे करना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सो दीज आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन सिंपली you spread your messages that on the occasion of your birthday you are going to celebrate with a party so you all are invited तो यहाँ पर आपके जितने क्लासमेट हैं कहीं ना कहीं एक पब्लिक है आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं एक साथ एक ग्रुप है तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक और वहाँ पे आप सिंपली अपने बर्थडे से रिलेटेड मैसेज को सर्कुलेट कर देते हैं तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें हम सब कुछ डिसाइड करें कैसे बोलना है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कितनी देर तक बोलना है ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप सिंपली इंफॉर्मेशन को अपने क्लासमेट्स के बीच में अनाउंस कर देते हैं ये तो बात हो गई आपकी एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेकिन जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी मस्ट फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट
everything is decided previously before disseminating the informations amongst the target audience, the people, or simply the public. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज डिसाइडेड, दैट इज प्री डिसाइडेड वेल इन एडवांस, किस तरह का मैसेज हमें ट्रांसमिट करनी है, कौन कौन सी टारगेट पब्लिक या ऑडियंस है, कब करनी है, अच्छा उस मैसेज में हमें क्या क्या बतानी है, क्या क्या नहीं बताना, और इस जो मैसेज डिसेमिनेशन का है, जो हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी भी हम जब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है, दे ऑलवेज स्टैंड्स विद सम पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मतलब का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपने टारगेट ऑडियंस के साथ नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हमेशा एक स्टैंडर्ड लेआउट फॉलो करता है, एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है। तो सब कुछ प्री प्लान होता है। सिंपली बात करें कि अगर आप एक किसी टीवी में या किसी और दूसरी मीडिया के अंदर किसी कंपनी का कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में जो है अपने इंफॉर्मेशन को बताना चाहता है आपको प्रिंट मीडिया या ऑडियो विजुअल मीडिया के जरिए, तो बिलीव मी उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने से पहले या उसको प्रिंट करने से पहले, उसको ब्रॉडकास्ट करने से पहले कंपनी ने काफ़ी एफर्ट प्लेस किए हैं उस कम्युनिकेशन मैटर को बनाने के लिए। काफ़ी कुछ सोचा है उन्होंने, प्री डिसाइडेड है कि कम्युनिकेशन मैटर क्या होगा, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे, अच्छा इस मैसेज को जो हम सर्कुलेट करना चाहते हैं उसके लिए राइट मीडिया कौन सी होगी, वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्या हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो इस मैसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा, नहीं होगा, कितना पैसा लगेगा, किस पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज़ को हम इंडोर्स करने के लिए, ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए सेलेक्ट करें जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा, अपीलिंग होगा, जो कस्टमर को रिझाएंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्प्रेड आउट करने वाली होती है कंपनी, तो बहुत चीज़ों के बारे में वो एडवांस में सोचती है, और तब जाके ये कम्युनिकेशन मैटर हम जैसे, या अगर ऑडियंस के लिए, हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तब वो उस तक पहुंचता है। इनफॉर्मली कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में कि जब चाह ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया कम्युनिकेशन मैटर और सर्कुलेट कर दिया, तो वैसा नहीं होता है। स्पेशली अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन में समहाउ इट इज पॉसिबल, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या मीटिंग होल्ड करने के लिए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं लगाती। ऑल ऑफ सडन इट कुड टेक प्लेस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो इंटरनल का मामला है, उनका जो है अपने एम्प्लॉयज के बीच का मामला है। लेकिन जब भी हम आउटसाइड एक्सटर्नल पब्लिक की बात करते हैं, तो किसी भी कम्युनिकेशन के सर्कुलेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स अ लॉट, how to design the material, how many the target audience are there in the market, who will read out the messages, what will be the benefit, and so on and so forth. So yes, phases of public relation, कितना ज़्यादा मेहनत लगाते हैं या कितने स्टेप्स के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को डिसेमिनेट करने से पहले सोचती है, क्या क्या बातें सोचती है, कितने फेजेस में पूरा करती है। यही आपका टॉपिक है, फेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्टैब्लिश ए पब्लिक रिलेशन एक्सटर्नल पब्लिकेशन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दे यूजुअली टेक्स इन देयर कंसिडरेशन बिफोर कम्युनिकेटिंग पीपल। तो यस, यही आपका हो गया फेजेस, डिफरेंट फेजेस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। Yes, sir. आ गया समझ Yes, कि sir. फेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या होता है। कि पब्लिक कोई भी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब अपने मैसेजेस को अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट पब्लिक के पास ब्रॉडकास्ट करना चाहती है, पहुंचाना चाहती है, तो उससे पहले उनको क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, किस तरीके का कंसिडरेशन उनको अपने अकाउंट में लेना चाहिए, और तब जाके उसको फर्दर डिसेमिनेट करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए।
तो यस, डिफरेंट फेजेस की बात अब हम करेंगे और अलग अलग फेजेस में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर each individual phases of public relation. ये सिंपली आपका एक बेसिक है कि एक्सपर्ट प्रोफेशनल काउंसिल that the exercise of public relations should be divided into 7 phases, यानी कि 7 कुल phases हैं public relations को establish करने में जो काम आते हैं। We tend to thought of listing the 7 phases solely to cue you of the inspiration of PR. It brings structure back to the method and saves you from omission. A requirement follow list that no PR skill will effort to skip. कहने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि 7 फेजेस को फॉलो करने के बाद 7 फेजेस के अंदर हम अल्टीमेटली अपने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने में पॉसिबल हो पाते हैं या इनफैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो let's explore all those phases individually. The first phase is listening and prioritizing of the message. Listening and prioritizing of the message. यानी कि जो एक्चुअल कंटेंट है हमारा, जो कि हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं या हमारे टारगेट ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। सभी चीज एक साथ हम नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। अगर एक प्रोडक्ट नया मार्केट में अराइव हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में हम अपने अपने इनोवेशन के बारे में अपने टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स को बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या बताना चाहते हैं। क्या वो प्रोडक्ट नया है? अगर नया है तो हम उस नएपन के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो है हम जो सर्कुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन। क्या प्रोडक्ट की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे? क्या कंपनी के ब्रांड इमेज के बारे में बताएंगे? क्या उसके प्राइसिंग के ऊपर फोकस करेंगे? क्या उसके क्वालिटी के बारे में फोकस करेंगे? क्या उसके एक्स्ट्रा क्वांटिटी या अपग्रेडेशन के बारे में फोकस करेंगे? वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, वो पूरा का पूरा प्लीज गिव मी मोमेंट, एक कॉल है, ठीक है। क्लास में, क्लास में बोलो। यस, तो प्रायोरिटी देना यानी कि हम उस प्रोडक्ट के ओवरऑल क्रेडिबिलिटी को एक साथ नहीं रख सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो अप all the individual ingredients, quality, and other accomplishment of the product in front of public all together. तो हम फोकस करेंगे कि किस मटेरियल को हम ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग बनाएंगे। क्या हम प्राइस के ऊपर हमारा एफर्ट होगा? हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो हमने इसलिए बनाया कि जो हमारा कॉम्पिटिटर का जो प्राइस था उसके मुकाबले में हमने कम प्राइस में ऑफर किया है। अगर मैसेज इस तरीके का है तो हम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट या क्वालिटी पे फोकस नहीं करने वाले। हम जो कम्युनिकेशन मटेरियल बनाएंगे इस तरीके का बनाएंगे जो प्राइस अपील करेगा। यानी कि हम उस मैसेज में ये बताना चाहते हैं कि अब हम ज़्यादा वेल एडवांस हो चुके हैं और हमारी प्राइसिंग इतना है, या 20% डिस्काउंट है, या 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमने दिया, या ये क्वालिटी जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है वो हमारे पास है। तो कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने मैसेज को, अपने कंटेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कौन सा मैसेज सूटेबल है आपके इंफॉर्मेशन को डिजिमिनेट करने में, या आप अपने इंफॉर्मेशन डिजिमिनेशन के दौरान किन किन बातों को रखना चाहते हैं, किन किन को छुपाना चाहते हैं, या वो आपके सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। यस, आप अपने मैसेजेस को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने मटेरियल को, अपने कंटेंट को जिसको आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, लोगों तक सामने लेकर जाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है तो उसको हम मेन मटेरियल मानेंगे अपने कम्युनिकेशन का। अगर उसके प्राइसिंग के ऊपर फोकस करना है तो प्राइसिंग को ही फोकस करेंगे। अगर अपने वारंटी या गारंटी सर्विसेज को हम ज़्यादा
अपग्रेड करना चाहते हैं या कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छा कैसे हैं, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे अच्छा है, हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे। आप यूजुअली देखते होंगे कि कई बार एडवर्टीजमेंट आता है, तो एडवर्टीजमेंट में यू डू नॉट सी द क्वालिटी, द मटेरियल, द इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, एनीथिंग, बट वहां पे आपको सिर्फ क्या बताया जा रहा है, थ्रू देयर टैग लाइन्स, थ्रू देयर एडवर्टीजमेंट थीम, कि व्हाई दे आर बेस्ट इन द मार्केट, व्हाई दे आर बेस्ट इन मार्केट। किसी फलाने कंपनी ने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे आई एम द नंबर वन कंपनी। तो यहाँ पर वो क्या दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि सर्वे हुआ है, सर्वे के दौरान मेरी कंपनी को नंबर वन का ओहदा मिला है, पोस्ट जो पोजीशन मिला है, तो दैट इज व्हाई आई कैन सर्व यू बेटर। कुछ लोग कहते हैं कि हम, जैसे अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लाइक आप पिज़्ज़ा हट की बात करें या और दूसरे रेस्टोरेंट हैं, आपके मैकडोनल्ड्स हैं या कोई और रेस्टोरेंट है, यूजुअली उनका कमिटमेंट, उनके एडवर्टीजमेंट में क्या आता है कि हम इतने घंटे में, इतने मिनट में अगर आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं तो आप उसको, आपको फ्री दे दिया जाएगा, वो प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जाएगा। तो उनका जो एडवर्टीजमेंट थीम है, जो कम्युनिकेशन मटेरियल, वो क्या है, दी टाइम डिलीवरी, प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। वहाँ पे वो प्राइस नहीं दिखा रहे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को नहीं बता रहे हैं या और कुछ नहीं बता रहे हैं, वो अपनी जो ब्रांड पोजीशनिंग कैसे बना रहे हैं, अपनी कंपनी का इमेज कैसे बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम डिलीवरी जो है प्रॉम्प्ट देते हैं। वी आर वेल नोन कंपनी इन डिलीवरिंग द पिज्जा विद इन 30 मिनट्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पिज्जा हम आपको फ्री अवेलेबल कराते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन मैटर, ये कम्युनिकेशन मैटर जो है वो एडवर्टीजमेंट के जरिए बताता है, टीवी के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, या फिर कंपनी की जो अपनी वेबसाइट होता है उसके जरिए वो लोगों को ये अपील करता है कि वी आर बेस्ट इन डिलीवरिंग दीज सर्विसेज ऑन टाइम, तो बिलीव इन अस एंड हमारे साथ आप प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे साथ आप जुड़िए। तो वहां पे उसका जो एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन मटेरियल हो गया है, टाइम ऑन डिलीवरी हो गया, उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मेन कंसंट्रेटेड एरिया है, वो क्या हो गया, टाइम डिलीवरी। बाकी चीजें वो नहीं बताएगा। तो कुल मिला के इसी तरीके के लिस्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल कंटेंट है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सभी कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं होता है कि हम कस्टमर को बता सकें। क्या कभी आपने कोई एड ऐसा देखा है जिसके अंदर एड मेकर या कंपनी यूजुअली जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो एक साथ बता देते हैं, प्राइस भी बता रहे हैं, क्वालिटी भी बता रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बता रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? क्या पॉसिबल है? कभी भी आपने ऐसा ऐड नहीं देखा होगा। हर बार कंपनी अपने नए नए फंड, जो फंडे हैं उसके साथ आती है, कभी वो प्राइस पे कंसंट्रेट करके कम्युनिकेशन दिखाती है, कभी वो क्वालिटी पे दिखाती है, कभी वारंटी एंड सर्विसेज पे दिखाती है, एंड सो फोर्थ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे जो ओवरऑल अकम्पलिशमेंट है कंपनी की या प्रोडक्ट की एक साथ ही दिखा दिया जाए या ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं लिस्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ द मैसेज। कौन सा मैसेज कब, किस ऑडियंस को कब, कब तक हमें दिखाना है, ठीक है। ये सारा का सारा इस फर्स्ट पॉइंट पे डिसाइड किया जाता है। इसको पढ़ ले। फर्स्ट सेक्शन ऑफ पीआर कैंपेन इंक्लूड डिस्टिंग्विशिंग एंड लिस्टिंग ऑफ द नॉलेज और मैसेज दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड। इट कैन बी एसोसिएटेड डिग्री, अनाउंसमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च, इवेंट और कैंपेन। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि या तो वो कम्युनिकेशन मैटर हमारा किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग से रिलेटेड, या इवेंट से रिलेटेड, या कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं, या प्राइस डिस्काउंट कर रहे हैं, या और कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मटेरियल एक ही होगा, या बहुत ज़्यादा होगा तो दो होगा, तीन होगा। सारे प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी को या एकम्प्लिशमेंट को हम एक साथ नहीं दिखा सकते। तो ये पहला आपका पॉइंट हो गया, फेज हो गया पब्लिक रिलेशन का, कि हम अपने कम्युनिकेशन मैटर को फिक्स करते हैं, क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, कब दिखाना है, कब तक दिखाना है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। यस, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. कौशिकी। Hello. हाँ, अनुभव, Yes, यू आर। sir. यस, आई कैन गेट यू। लेट मी आस्क टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो। कौशिकी, कौशिकी, Yes, sir. बात चला।
कौशिक इज देयर? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट Yes, फेज। sir. Yes, sir. ओके तनिया, रश्मि, तनया, Tanya Rashmi, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तानिया है ना? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। कई लोग इसको मे बी तनया कहते हैं, योर तानिया, वेरी गुड। Okay. एनीवेज, वानी। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, आई होप ऑल आर प्रेजेंट। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहला हमारा हो गया कि हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन मैटर को डिसाइड करते हैं, कौन सा पर्टिकुलर मैसेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो यस, prioritizing the message. The second one is determining the general public perception or awareness. ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि भाई हम क्या दिखाना चाहते हैं। अभी तक हमने ये नहीं जाना या जानने की कोशिश नहीं करी कि कस्टमर या हमारा टारगेट ऑडियंस क्या चाहता है। मैसेज हमारे हिसाब का हो ये जरूरी नहीं है। कई बार हम पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे, कई बार हम पब्लिक फीडबैक के बेसिस पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, और हम अपना कम्युनिकेशन मैटर उसी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ठीक है? एवरीथिंग इफ विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, definitely the company will not be able to sustain in the market, because आज के इस competitive age में first of all the customers are considered, they are treated as a god. Company before initiating their production, before initiating their communication matter to be broadcasted, they consider the general public, what they want to listen, what they want to see, what kind of a product they are looking at, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में, ये तो हमारा पहला पॉइंट हमारे तरीके से यानी कंपनी की तरफ से एक एक प्रायोरिटी दी थी, हमने सोचा था। अब चलिए थोड़ा पब्लिक से भी पूछ लेते हैं कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं। क्या हमने जो कम्युनिकेशन मैटर डिसाइड किया है, क्या वो एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा, या वो काम करेगा, या पब्लिक कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर द पब्लिक। तो हम सेकेंड फेज में क्या करेंगे, पब्लिक को हम रिव्यू करेंगे, पब्लिक की ओवरऑल फीडबैक को कंसिडर करेंगे, सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उनके ओपिनियन को हम जानना चाहेंगे कि वो क्या खरीदना चाहती है या किस तरीके का कम्युनिकेशन वो देखना चाहती है। तो वो क्या करती है, सिंपली सर्वे के जरिए डिफरेंट कस्टमर्स को क्वेश्चन पूछ लेती है। वो सर्वे या आपका टेलीफोनिक हो सकता है, या फिर सिंपल जो हम क्वेश्चनर को फिलअप करते हैं वहां से हो सकता है, कंपनी के पर्सनल मीटिंग के साथ हो सकता है, आपके पास ईमेल में कोई एक फीडबैक फॉर्म आ गया, वो फिलअप आपने कर दिया, उसका असेसमेंट कंपनी ने कर लिया कि आप क्या चाहते हैं। तो कुल मिला के सेकेंड स्टेज में कंपनी वुड इनिशिएट देयर पब्लिक सर्वे असेसमेंट रिसर्च फ्रॉम द पब्लिक इटसेल्फ। हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज वे में सिंपली किसी तरीके से कस्टमर से जानने की कोशिश कर लेंगे कि आप, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक छोटी सी एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आई वाज वर्किंग एज द रिलेशनशिप मैनेजर इन ए कंपनी, दिल्ली में था। तो uh, एक बार ऐसे ही मैं रास्ते में जा रहा था पैदल, तो सामने से एक एक कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आया मेरे पास। वो सिंपली, आप देखते होंगे, एक फाइल पकड़ लिया, एक पेन ले लिया, सर 5 मिनट का टाइम देंगे क्या? तो पहले तो मुझे लगा कि पकाएगा, तो मैंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम, मुझे कहीं जाना है। फिर वो कहता है कि भाई सर, आई हैव सम गिफ्ट वाउचर फॉर यू, इफ यू गिव योर टाइम वी विल गिव यू सम गिफ्ट वाउचर। मैंने सोचा चलो ठीक है, फिलहाल मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, मैंने ऐसा सोचा, और कहा ठीक है, आई कॉपरेट यू। फिर वो क्या कहता है कि सर, सामने हमारे एक गली है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे चलिए, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लेंगे हम, 5-10 मिनट में तो नहीं है। फिर वो दूसरा तरीके से वो बात करने लगा। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है? फिर मैंने, चलो ठीक है, गली के अंदर ही है। तो गली के अंदर गया तो एक किसी घर को उन्होंने रेंट पे ले रखा था, पूरा घर में उनका पूरा, वहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट था, लाइक बड़ा सा एक टीवी स्क्रीन था, बिल्कुल ऑफिस की तरह बना के रखा था।
वहां पे मुझे बिठाया गया, चाय कॉफी पिलाया गया। दरअसल वो एक सर्वे था किसका, जो आईटीसी कंपनी है, आईटीसी का जो वो बिंगो एक आता है, मैड एंगल है ना, वो फ्लेवर कंपनी लॉन्च करना चाहती थी। तो उसके पहले वो एक सिंपल, एक आईटीसी वेल रिकग्नाइज कंपनी है, कई चीजें मार्केट में ऑलरेडी बिक रही हैं, लेकिन उस छोटी से मैड एंगल फ्लेवर को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उन्होंने कंप्लीट मार्केट सर्वे किया। वो तो मैं एक छोटा सा दिल्ली के अंदर कस्टमर था, एक दिल्ली के अंदर एक एक इंडिविजुअल था, ऐसे पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने ज्यादा कैंपेनिंग चल रही होगी उनकी, उन्होंने कितना सर्वे किया होगा। तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक एक लंबा चौड़ा एक 8-10 पेज का क्वेश्चनर दिया मुझे फॉर्म भरने को। आप किस प्रोफेशन में हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप तो इससे पहले किस कंपनी के जो चिप्स या इस तरह के फ्लेवर खाते हैं, कितना खाते हैं महीने में, कितना आपका एस्टिमेट होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब ये फिलअप करवाया तो एक जो टीवी स्क्रीन में है वहां पे एक रॉ एड दिखाया, यानी कि वो एड अभी कंप्लीटली बनी नहीं थी मैड एंगल से रिलेटेड। एक रॉ एड दिखाया जो कि मतलब बनने वाली थी और उन्होंने तैयार किया था, लेकिन उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम जैसे कई कस्टमर्स जो है उनसे रिव्यू लेना चाह रहा था। फिर ऐड के अंदर उन्होंने दिखा के जब 5 मिनट का, 2-3 मिनट का ऐड खत्म हो गया, तब फिर उन्होंने हमसे ऐड से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे। सर इस तरीके से जो हम अगर मैसेज सर्कुलेट करेंगे तो सही रहे होगा क्या, ये कैरेक्टर सही है क्या, इसके अंदर ये डालना चाहिए तब सही होगा। उससे रिलेटेड भी करीबन 8-10 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो वो क्या था, एक तरह से सर्वे था, एक एक रिव्यू था हम जैसे कस्टमर से के सामने, कि भाई एक एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन मैटर जो हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं, आप ही बताइए कि क्या ये सही है। तो उस मैसेज में मुझे जो जो अच्छा लगा बता दिया, जो अच्छा नहीं लगा वो उसको बारे बारे में बता दिया। और उसके बाद जब कंपनी ऐसे लाखों करोड़ों रुपए करोड़ों लोगों से जो उन्होंने फीडबैक लिया होगा, और उसके बाद जो ओपिनियन पब्लिक का आया होगा, एवरेज ओपिनियन, उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसका जो कम्युनिकेशन मैटर हमने बनाया है, जो एडवर्टीजमेंट बनाया है, वो सही है या नहीं। तो कुल मिला के ये ऐसा स्टेज है जिसमें कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट करने से पहले, इनफैक्ट बनाने से पहले, वो क्या करते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस से ही कंसेंट ले लेते हैं, उनका ही ओपिनियन ले लेते हैं कि वेदर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर यू इज अप्रोप्रिएट और विल फुलफिल योर ओवरऑल नीड्स और नॉट। तो सेकेंड स्टेज में दे टेक द पब्लिक ओपिनियन बिफोर preparing their content, the messages to be publicized amongst the target audience. समझ आ गया सेकंड फेज? ये सर एक क्वेश्चन ये था। हेलो बोलिए बोलिए। सर, आपने एक कहा था कि एक थ्योरी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पब्लिक से या कस्टमर से पूछने के अलावा, पूछने के बजाय उनसे उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और बिना पूछे ही उनका जो नेसेसिटी है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो भी उनका डिमांड है, प्रॉब्लम है, उसे समझ के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। मतलब ये भी पब्लिक रिलेशन में एक मैटर करता है। तो ये वाला जैसे आपने कहा था ना एक बार। बिल्कुल, वो हेलो। पब्लिक रिलेशन थ्योरी थी, हाँ बता रहे हैं। हाँ सर, तो उसमें ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि सर्वे ही करके ऑब्जर्व करेंगे तो बिना पूछे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, अब मार्केट हाँ। में फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट का वेरिएंट जो है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम्म। कई महीनों से या सालों से कस्टमर उसको लगातार खरीद रहे हैं, ठीक है। और यस सर। अगर खरीद रहे हैं तो वो साइलेंटली कैसे इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट के किस पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से ये हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनको साल 2 सालों में अपने आप मार्केट ट्रेंड से पता चल जाएगा कि हो सकता है कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है, हम इतने लेसर प्राइस में बेच रहे हैं जो कस्टमर को बड़ा पसंद आ रहा है। हो सकता है हमारा इंग्रेडिएंट इतना अच्छा है कॉम्पिटिटर की तुलना में कि लोग उसके टेस्ट को पसंद कर रहे हैं। साइलेंटली सर, ऑब्जर्वेशन हो गया। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन कर सकता है, हो सकता है, ये क्वेश्चन हाँ हो हाँ, सकता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। श्योर करने के लिए तो उसको सर्वे करना ही पड़ेगा ना। सर्वे देखो, अब हमने बात क्या किया कि हमने साइलेंटली ऑब्जर्वेशन कैसे किया कि भाई इसका प्राइस फैक्टर हो सकता है,
पसंद के नापसंद के लिए, इसका क्वालिटी, इसका सर्विसेज हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी हमने सर्वे किया है। इन सब चीज़ों को जानने से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कंप्लीटली साइलेंट मोड में रह के हम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके। सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड को देखते हुए अचानक से हम एक नए प्रोडक्ट वेरिएंट को लॉन्च करते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट में चूंकि कार की मॉडल सक्सेस हो गई तो चलो ऐसा करते हैं, इसका एक और फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च कर देते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है, हम्म। ये भी चलेगा, ये मान के कंपनी चलती है। लेकिन ये फेमस क्यों हुई? क्या हमारा प्राइस अच्छा था, क्या हमारा माइलेज अच्छा था, हमारी इंजन क्वालिटी अच्छी थी, हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छा था? इस चीज को जानने के लिए भी उन्होंने कस्टमर से फीडबैक लिया है, कस्टमर से पूरा का पूरा फीडबैक लिया है। तो उसको और भी ऑब्जर्वेशन में ही लेते हैं, कंसिडर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑब्जर्वेशन, बिना ऑब्जर्वेशन का पॉसिबल नहीं है। साइलेंट वे तो में एक हम तरह से ये तो हाँ, हम पूछ ही रहे हैं ना उनसे, एक तरह से ये कम्युनिकेशन हो ही रहा है, वर्बल नहीं है लेकिन रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब किसी से फीडबैक ले रहे हैं, रिटन या फिर वर्बल जो भी। हम्म, तो एक तरह से तो हम उनसे कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी और इसमें ये कहा गया था कि बिना ऑडियंस से कम्युनिकेट किए, उन्हें ऑब्जर्व करके हम जो फीडबैक या फिर जो रिव्यू मतलब क्रिएट करते हैं उनके बारे में, देखो ऐसा वो जो कुछ। थ्योरी था, ये वो जो थ्योरी था, यूजुअली अगर हम किसी कमर्शियल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। वो यूजुअली थ्योरी क्या था, एक जनरलाइज वे में, जनरल पब्लिक, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन की हम बात करें कि कोई भी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, यानी कि कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को देखकर चुपचाप साइलेंटली रह के उसका ओवरऑल ये हम्म। कंक्लूजन कर सकता है कि एम्प्लॉयज कितना ज्यादा मेहनती है, या काम से जी चुराता है, या बहुत जो है प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है। उस चीज को वो क्या करता है, पूछता नहीं है, वो इंटरनली असेस करते हुए उसको देख लेता है। तो जो उनकी जो थ्योरी है वो इस तरीके के कम्युनिकेशन में काम आता है। अगर कोई इंटरनल असेसमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयज का असेसमेंट करना है, या फिर अपने जो जनरल यस। सोसाइटी का वो करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि व्हाट द सोसाइटल पीपल लुक्स फॉर, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनली कम्युनिकेशन हम मानेंगे। जो उनका थ्योरी था वो इसी इंटरनल परसेप्शन को फिक्स करने के लिए ओके। यूज में आता था। अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उनकी थ्योरी पूरी 100% अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आज के समय में कस्टमर्स हमेशा अपनी जरूरतों को बताते हैं और तभी कंपनी इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि उनको क्या चाहिए। कभी भी अगर कंपनी खुद से डिसाइड करने लगे कि भाई दिस शुड हैपन, या कस्टमर इज लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर डिजाइन, नो, दिस प्रिजम्पशन डज नॉट वर्क। दिस काइंड ओके। ऑफ जो प्री डिसीजन है कंपनी का, वो काम नहीं करता। आज का समय, हम आशीष आप लोगों ने शायद मार्केटिंग नहीं पढ़ा, मार्केटिंग एरा कहते हैं। आज से 50-60 साल पहले, 90s 50s 60s के समय मार्केट में ऑल्टरनेटिव नहीं था, यानी कि जो मैन्युफैक्चर थे कंपनी उतने ज्यादा नहीं थे कि कस्टमर बार्गेनिंग कर सके। सो तो उस मोनोपोली समय था। में मोनोपोली था। मोनोपोली मोनो। हम कह सकते हैं, हम्म। कह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं था, उतने ज्यादा इंटरप्राइजेस नहीं थे, इसलिए कंपनी जो बनाती थी फटाफट बिक जाता था। और इस तरह का ऑब्जर्वेशन या रिसर्च या इस तरह का सर्वे कुछ भी नहीं करती थी कंपनी। लेकिन आज के समय में नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। इफ यू डू नॉट टेक केयर कस्टमर्स मोर प्रीशियसली, वो इमीडिएटली किसी दूसरे कंपनी की ओर स्विच ओवर कर सकते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको, जो उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो होड़ सी मची हुई है कि कौन इफेक्टिव तरीके से अपने कंसिडर कस्टमर को कंसिडर करता है, कौन उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। जनता या कस्टमर उसी के साथ जुड़ना पसंद करेगी। तो यस, ये दूसरा जो स्टेज है वो ये कहता है कि हम अपने कस्टमर का कंसेंट लेते हैं, यानी जो हम एडवर्टीजमेंट मैसेज बनाने जा रहे हैं, जो उसके अंदर शो करना जा रहा है, हम डायरेक्टली ये उनसे नहीं पूछते थे कि भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारा एडवर्टीजमेंट कैसा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। वो तो एक तरह से आप मान के चलिए आईटीसी का एक स्ट्रेटेजी होगा जो उन्होंने पूछ लिया, बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दी स्ट्रेटेजीज मेथड ऑफ देयर कम्युनिकेशन।
वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि सीधा का सीधा जो है उस एडवर्टीजमेंट कंटेंट को कोरिलेट कर देगा। वो पूछ लेगा प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह के प्राइस रेंज आप पसंद करते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। और इन सारे क्वेश्चंस को एक क्या करेगा वो, एक जॉइंटली उसकी एनालिसिस कर लेगा और एक नतीजे पे पहुंचा है कि कस्टमर जो है वो कह रहे हैं कि प्राइस अच्छा होना चाहिए, कस्टमर कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी अच्छा चाहिए, प्राइस से मतलब नहीं है, कस्टमर ये कह रहे हैं कि हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। तो पूरा का पूरा क्रक्स निकल कर उनके सामने आ जाता है और तब जाकर वो उसी तरीके का एडवर्टीजमेंट बना देते हैं। अगर 80% या 90% जो सर्वे हुआ था, कस्टमर ने ये कहा कि हम जो है एक चीपर प्राइस की ओर फोकस कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जो मार्केट में प्राइस अच्छी रखता हो। यानी कि प्राइस इज द मैन्युफैक्चर, यानी कम्युनिकेशन मैटर जो बनेगा, जो एडवर्टीजमेंट बनेगा, कंपनी सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर फोकस करेगी और अपने एडवर्टीजमेंट में ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई हम इतने प्राइस में आपको दे रहे हैं। या क्वालिटी पे अगर कस्टमर का रुझान है तो क्वालिटी से रिलेटेड वो मैटर का कंटेंट तैयार करेगी। तो कुल मिला के सेकेंड स्टेज में जो कंपनी होती है, पब्लिक का फीडबैक लेकर सर्वे करके इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो चाहती क्या है, और वो जो चाहती है वो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाने का काम करता है, अपने पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर दिखाने का काम करता है, वेदर इट इज प्राइस, वेदर इट इज क्वालिटी, क्वांटिटी, कस्टमर सर्विसेज, एनीथिंग। समझ गए? तो सेकेंड स्टेज इज, यस सर। अच्छा इसके बाद तो आपकी कोई क्लास नहीं है ना? नो सर। नहीं है? सर नहीं है, इसके बाद नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा और समय लेंगे क्योंकि लेट से भी स्टार्ट हुए थे, 5-7 मिनट और लेते हैं, है ना? ओके सर। पॉइंट, सेपरेट पॉइंट्स आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट, क्योंकि ये जो हम बताते हैं उसी का एक क्रक्स है, उसी का एसेंस है, समझ गए? फिर भी अगर आप पढ़ रहे होंगे, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कुछ भी अगर डाउट हो किसी पॉइंट के बारे में आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं ना। चलिए, थर्ड इज ड्राइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिकेशन। अब बात आती है, कस्टमर ने तो ये कह दिया, पब्लिक ने ये कह दिया कि हमें ये चीज चाहिए, अब अगेन फिर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव से उसको मैच करती है। अगर मान के चलिए कस्टमर ने सर्वे में ये कह दिया कि भाई हमें लेसर प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, अब कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव में ये बना रखा होगा कि कंपनी हैज टू अर्न हायर प्रॉफिट, कंपनी वांट्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो क्या इस हायर प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्टिव की तुलना हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट से करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। कस्टमर क्या चाह रहे हैं? लेसर प्राइस। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हम हायर प्राइस या हायर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा लेसर प्राइस के अंदर हम प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, या अगर इतने प्राइस में अगर कस्टमर चाहते हैं उसमें हम बेचेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली जो कस्टमर ने कह दिया एज इट इज उसको हम उतार देंगे, पॉसिबल नहीं है। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी मैच करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को भी देखते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं। कस्टमर कह देगा कि हमको फ्री में चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी फ्रीली उनको चीजें अवेलेबल नहीं करा सकती। कस्टमर कह रहा है कि भाई दूसरे कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले कि अभी जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इतना बड़ा बैटल चला, जियो आने के बाद जितने भी दूसरी कंपनियां सब धराशायी हो गए या ऑलमोस्ट घाटे में चल रहे हैं, वो क्यों हुए? क्योंकि जब जियो ने इतना मनचाहा ऑफर कस्टमर्स को दे दिया, पहले फ्री दिया, फिर सस्ते प्लान दिया, अभी भी सस्ता ही है, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो गई? उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जब जियो ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन क्यों नहीं कर सकते, तुम भी करो। तो एक्सपेक्टेशन उनकी ये हो गई, तो उसके हिसाब से वो सर्विसेज चाहना मतलब चाहने लगे। और दूसरी कंपनी ये दे पाने में पॉसिबल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि जियो का तो एक छोटा सा जो रिलायंस का एक छोटा सा सब्सिडरी है आपका जियो टेलीकॉम, छोटा सा, तो उसको विशेष फर्क नहीं पड़ता अगर वो फ्री का भी दे रहा है या कम पैसे में दे रहा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा है उसके पास। लेकिन बाकी की जो कंपनी है, वोडाफोन, एयरटेल, ये क्या है, उनका जो मेन फोकस है वो टेलीकॉम बिजनेस था। अब एक कहावत है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो इनकी इस एक्सपेक्टेशन को, जो मार्केट में जो ट्रेंड चला, उस ट्रेंड को देखते हुए जब कस्टमर ने ये कहा कि हम कम प्राइस में जो देगा हम उसी से लेंगे,
तो ये जो कंपनी है वो टिक नहीं पाई, क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि भाई हम, क्योंकि टेलीकॉम हमारा मेन बिजनेस है, तो हम फ्री या कम कीमत पे नहीं दे सकते, हमें घाटा होगा, हमें लॉस होगा। तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को देखकर अपना विड्रॉ कर लिया मार्केट से। कंपनीज या तो बिक गई या बंद हो गई। तो कहने का मतलब है कि कंपनी, जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर चाहे, जिस तरह का कम्युनिकेशन सुनना चाहे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर हमारे चाहने और उनके चाहने में अंतर आ गया बहुत ज्यादा, जमीन आसमान का, तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी सस्टेनेबिलिटी उसी चीज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अब कस्टमर से जो कलेक्शन हुआ है इंफॉर्मेशन का, फीडबैक का, उसको मैच करती है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। और अगर ऑब्जेक्टिव उसका मैच आ जाता है कि भाई हम पॉसिबल हैं ये चीज़ प्रोवाइड कराने में, तो वो चीज़ हम बनाएंगे और उस तरह के कम्युनिकेशन मैटर शेयर कर देंगे। नई पॉसिबिलिटीज है, हम नहीं करेंगे। ओके, तो दिस इज थर्ड स्टेज। ओके, आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स, तीन ही पॉइंट्स हुए हैं और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। यहाँ पर ओके हम सर। स्टॉप करेंगे। और अब आपको अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। अनुभव, सर ये क्वेश्चन था कि सर, यस बोलो। सर, हेलो। यस यस, स्पीक अप। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि जियो के पास और भी सारी इंडस्ट्री हैं, कंपनियां हैं, उसका मेन बिजनेस टेलीकॉम नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लॉ भी तो होगा कि अगर कोई बाहर से आके जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट करे और उनके रूल्स रेगुलेशन के एकदम विपरीत जाके कुछ ऐसा डिसीजन ले ले कि जो पूरा अरे मार्केट को इफेक्ट कर दे। बिल्कुल, मार्केट कॉम्पिटिटिव है। आज जियो जो है मार्केट में अपना स्टैंड क्यों रखने लगी, बाकी कंपनी क्यों डूब गई? वो तो बाद में इन कंपनियों ने मिलकर जो है वो ट्राई के अंदर एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी कि भाई हम डूबने वाले हैं, जियो की वजह से हमें घाटा हो रहा है। तब जाके कुछ स्टैंडर्ड लॉ ट्राई लेकर आई कि भाई चलो जो है एक कॉमन प्लान सबके लिए होगा, कि भाई अब हम सिर्फ कॉल्स कंप्लीटली फ्री नहीं देंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, मिनट्स फ्री, इतना मिनट्स फ्री देंगे, इतना ये हम ऑफर देंगे। और सभी कंपनी के सर साथ ये लेकिन सर लेकिन सर जियो जैसे, जियो के और भी काफी सेक्टर्स हैं, लेकिन मतलब रिलायंस के और भी सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन जियो जो सेक्टर है उसका भी तो एक मैनेजिंग कम्युनिटी होगा, उसको भी तो अपना एक पर्टिकुलर जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें प्रॉफिट चाहिए होगा। और अगर ये इतना सस्ता सस्ता डेटा देना पॉसिबल है तभी तो वो दिया होगा, नहीं तो ऐसा तो हो सकता है कि कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए शुरू से ठग रही होंगी कस्टमर्स को। और जियो ने मतलब जो जो मेन मतलब जो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव कॉस्ट अप्लाई किया और मुनासिब रेट लगाया कस्टमर्स के लिए, और डेटा का सही रेट एक्सप्लेन किया उसमें, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ देखो, ऐसा बात नहीं, प्रॉफिट मेकिंग जरूर इंटेंशन था, लेकिन मार्केट कवरेज सबसे ज्यादा उनका मेन कंसंट्रेशन था कि भाई हम मार्केट को पहले कवर अप करेंगे, कस्टमर्स को पहले फ्री की आदत लगाए। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको जियो फ्री देने जा रही थी और अब जाके बहुत ज्यादा कंपनी घाटे में भी नहीं रही। अब आई थिंक कितना, 4 साल के आसपास तो हो गया ना, 2016 में लॉन्च हुई थी, तो अब कंपनी घाटे वाली हम्म। पोजीशन में नहीं है। और अगर घाटा भी है तो अपने कुछ देखो शेयर उसको बेच दिया, तुम्हारा फेसबुक को बेच दिया 10% या कुछ ना बेच दिया, हम्म। और दूसरे शेयर होल्डर्स को भी बेच रहे हैं। तो घाटा को हम्म। बराबर करने के लिए वो एफर्ट लगा रही है। बहुत लंबे समय तक घाटा कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन उनका इंटेंशन ये था कि पहले हम कस्टमर्स को क्रिएट करें, उसके बाद अपने आप देखा जाएगा, बाद में कुछ होगा। तो इसीलिए शुरू के कुछ सालों में कंपनी ने घाटा भी बर्दाश्त किया। अपने दूसरे हम्म। सब्सिडी जो दूसरे कंपनी थे उसके अंदर वो कंपनी जो है पैसा इन्वेस्ट किया इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, और तब जाके इसको स्टैंड किया। तो शुरुआत में ये उसकी इनकी स्ट्रेटेजी थी कि पहले क्रिएट द कस्टमर्स एंड देन ट्राई टू सस्टेन, ट्राई टू होल्ड, और उसके बाद जो भी स्ट्रेटेजी होगी देखी जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर अगर जियो से भी बेटर कोई अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए कोई फॉरेन कंपनी आ जाती है और जियो से ज़्यादा लिक्विडिटी ऑफर लेकर आती है, तो उसका भी मार्केट चल पड़ेगा। तो सर कहने का, नैतिक हाँ, तौर पे जो मोरल 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 व्यू है, मोरल व्यू होना चाहिए, उसके हिसाब से हम किसको गलत कर सकते हैं, जियो को गलत कर सकते हैं या फिर जो अदर कंपनियां थी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डेटा प्लान्स जियो ज्यादा जियो चार्ज कर रही थी, उनको गलत कर बिल्कुल, सकते? जियो जियो जो ने है गलत देखो, किया यानी? नहीं जियो ने गलत नहीं किया। अच्छा, अगर हम मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ नैतिक व्यू से, आधार पे हम किसको? हाँ। दो तरीके से इसको सोच नहीं सकते नहीं, हैं। ओवरऑल ओवरऑल सर, ओवरऑल बात करें तो ये, कस्टमर तो फ्री में चाहता है।
फ्री में कस्टमर तो चाहता है फ्री में चाहता है। ऑब्वियसली। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ठीक है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है कि आपने इमीडिएटली जो है कई कंपनीज को रूट आउट कर दिया, खत्म कर दिया। अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। से देखें तो ये अच्छा है, क्योंकि वो कंपनियां पहले काफी लूट चुकी हैं हमें, काफी ज्यादा अच्छा। जो कॉल चार्जेस है, डाटा चार्जेस है, बहुत पैसा कमाया, बहुत हम्म। पैसा कमाया। अब अगर हमारे ओके। वेलफेयर के लिए कोई अगर आगे आता है तो ऑब्वियसली हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, टेलीकॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, अनफेयर प्रैक्टिस को हम कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू और सर। अदर क्वेश्चन बाकी लोग हैं? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। Okay, thank you very much to all of you for attending this session. Thank you. थैंक यू सर।